کا اس وقت کوئی راستہ نہیں. پہلے اسے کھانے اور خوراک اور دوائی کے راستے بند کیے گئے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ 20 دن مسلسل بموں کی بارشیں اور بارود کی آگ میں غزہ جلتا رہا ہے اور اقوام متحدہ کا اجلاس نہیں ہوا، اور 21ویں دن اجلاس ہو گیا تو اسرائیل نے جنگ بندی کی بجائے غزہ پر زمینی حملہ شروع کر دیا. دنیا دیکھتی ہے 7 ہسپتال تباہ کیے گئے ہیں، 24 شفاخانے تباہ کیے گئے ہیں، ہاسپٹلز پر حملے ہیں، اسکول پر حملے ہیں، پلے گراؤنڈ پر حملے ہیں، سویلین آبادی پر حملے ہیں، اور عالمی اسلام سمیت پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. ان حالات میں جب فلسطینی بچے، مائیں اور بہنیں مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز پر لبیک کریں، ہم ان کی چیخوں کو سنیں، ہم ان کے درد کو محسوس کریں، اس لیے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک جسم کی طرح ہیں. اور کل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے تو اگر ہم نے ان کی امت کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے تو ہم کس منہ اور کس چہرے کے ساتھ ان سے شفاعت اور جام کوثر کی درخواست کریں گے. جماعت اسلامی نے اپنے مظلوم بھائیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کل اسلام آباد میں 2 بجے غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں الحمدللہ جاری ہے. ہمارے یہاں کی مقامی قیادت نے انتظامیہ سے بھی بات کی، اور آج 12 بجے انتظامیہ نے ہمارے جلسے کی جگہ کو دیکھنا تھا، اور تمام تر صورتحال سے یہاں کی انتظامیہ آگاہ تھی، لیکن 12 بجے فوراً بعد انتظامیہ نے ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور لاؤڈ سپیکر لگنے تھے تو اس کو اٹھانا شروع کیا. اور پھر پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے احتجاج میں امریکہ کا نام یا امریکی سفارت خانے کا نام کیوں لیا ہے، ورنہ احتجاج تو وہاں شکاگو میں بھی ہو رہا ہے، فرانس میں بھی ہو رہا ہے، آپ کے لندن میں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے. لیکن شاید امریکی سفارت خانے کے نام لینے سے ہم کو اتنی تکلیف ہوئی. ہم اس لیے امریکہ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ امریکہ بھی کلم کلہ اس دہشت گردی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، وہ تبکی دے رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے 3 بار تل ابیب کا دورہ کیا، بائیڈن امریکی صدر نے وہاں کا دورہ کیا، اور ایک بار بھی انہوں نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی بلکہ خود غزہ کے مسلمانوں کی مذمت کی ہے کہ وہ کیوں آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ کیوں اپنے حق کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو میں شاباش دیتا ہوں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کو کہ انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں برملا کہا کہ گزشتہ 56 سالوں سے فلسطینیوں کی زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا، ان کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کیا، ان کو اپنے جائیدادوں سے بے دخل کیا، وہ آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے. 56 سال انہوں نے گھٹن کے ماحول میں گزارے ہیں، اور خود یو این او کے سیکرٹری جنرل نے اعتراف کیا کہ جب وہاں کے لوگوں کو یقین ہوا کہ اب کوئی سیاسی حل نہیں ہے، وہ اب اپنی زندگی کے لیے جدوجہد نہ کرے، آزادی کے لیے جدوجہد نہ کرے، تو اس کے ساتھ اور آپشن کیا ہے. لہذا ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے
हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर तरीके से अपने फ़लस्तीनी मज़लूम भाइयों का साथ दें और कल का मार्च इसी जद्दोजहद में शिरकत का एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे हमारा फ़र्ज़ पूरा होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा भी मुमकिन हो हम इस जुल्म और जबर, इन हमलों को, फास्फोर्स बमों के इस्तेमाल को ख़त्म कर ले, उनका मुआसरा ख़त्म हो जाए, उनको खाने का सामान पहुंच जाए, पीने का पानी पहुंच जाए, दवाई पहुंच जाए। अब ये बड़ी तादाद में लोग मलबे के तले दबे हुए हैं, उनके निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को मशवरा देता हूँ कि आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें, होश के नाखुन लें और हमारे एक पुरअमन एहतजाज में रोड़े ना अटकाए। ये एक पुरअमन एहतजाज है इसलिए कि हमारी माएँ भी इसमें शरीक है। फ़लस्तीन में माओं पर जुल्म हो रहा है, हमारे बहनें भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक है और हमारी बहनों पर जुल्म हो रहा है। हमारे बच्चे भी कल हमारे साथ होंगे इसलिए कि वहाँ बच्चों पर जुल्म हो रहा है। हमारे नौजवान और बुजुर्ग भी इसमें शामिल होंगे इसलिए कि वहाँ बुजुर्गों पर जुल्म हो रहा है। डॉक्टरों को भी मुआफ़ नहीं किया गया। ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके ख़ानदान के 14 अफराद शहीद हो गए, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अगर आज गज़ा के लोग खड़े हैं, उस घुटन में खड़े हैं, बारूद की शोलों में खड़े हैं, लोहे की बारिश में खड़े हैं, चारों तरफ से मुआसरे के दौरान भी खड़े हैं, मेरे ख्याल में हमें भी खड़ा होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में एक और सकूत बगदाद दे के, एक और सकूत उनलस और गरनाता दे के, एक और सकूत समरकंद और बुखारा दे के, माजी में जो कुछ हुआ है हमने उनसे सबक लिया है। माजी में यही होता रहा कि एक जगह मुसलमान पर हमले होते थे और दूसरे तरफ मुसलमानों को समझाया जाता था कि आप उनका साथ न दें, हमारी दुश्मनी उनके साथ है, आपके साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। इसलिए इस लम्हे में खामोश रहना, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ न उठाना, ये सच्ची बात यह है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा करने के मुतरादिफ है। लिहाजा कल मैं अपने तमाम भाइयों से, बहनों से अपील करता हूँ कि आप इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। गज़ा मार्च होगा, हर हालत में होगा इंशाअल्लाह ताला। डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। इस्लामाबाद के अमीर जनाब रंधावा साहब को गिरफ्तार किया गया है, मैं कहता हूँ उनको अपने साथ रखें। हम उनकी रिहाई का मुतालिबा नहीं करेंगे, लेकिन गज़ा मार्च होगा और हर हालत में इंशाअल्लाह ताला। कल ज़ोहर के बाद हमारे इस मार्च का आगाज़ होगा और पुरअमन मार्च होगा और इसके ज़रिए हम अपने भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों, मेरे गज़ा के बच्चों, मेरे गज़ा के मुसलमान माओ, बहनों और बेटियों, आप लावारिस नहीं हैं। हम इस्लामाबाद में हैं, लेकिन हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा का जो लाहे अमल है उसका ऐलान मैं कल गज़ा मार्च में करूँगा। अच्छा, सिराजुल साहब ये कहा गया है कि आज मैं उधर ही मौजूद था जब वहाँ पे शेयरिंग हुई और काफ़ी ज़्यादा आपके लोग जो है उनको गिरफ्तार किया गया और इंतजामिया जो है वो किसी तरह की स्कूल में नहीं लग रही कि वो कल आपको मार्च करने देगी। तो आपका क्या लाए अमल होगा, आप लोग कैसे जो है वो इधर तक पहुँचेंगे और अपना मार्च जो है उसको कम्प्लीट करेंगे? मैं फिर कहता हूँ कि गज़ा मार्च इंशाअल्लाह ताला हर हालत में होगा और हम नहीं चाहते हैं कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को सारी दुनिया में ये बदनामी मिले। सारी दुनिया में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने गज़ा के लिए निकलने वाले जुलूस पर फायरिंग की, शेलिंग की, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में सारी दुनिया के मुसलमान तुम्हारे ऊपर लानतें भेजते हैं अगर आप इस तरह करते हैं। जो कुछ आपने किया है वो किया है, लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में पुरअमन मार्च। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कहा गया है कि दफ़ा 144 नाम, क्या आपके इंतजामिया से मुज़ाकरात हुए उसके बाद
जब खड़ा गया वहाँ पे, और अब इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, और आपने जो अमेरिका एम्बेसी में जाने का ऐलान आज भी किया है वहाँ पे अकरम साहब ने, तो क्या वो बरकरार रहेगा? प्यारे भाई, अमरीकी सफारत खाने के सामने हमारा यह एहतजाज है। अमरीकी सफारत खाना अगर अमेरिका का है तो उसका सामने जो सड़कें हैं वो तो हमारी है। हमने पूरे इस्लामाबाद अमेरिका के हवाले तो नहीं किया है। ये तो हमारी मिट्टी है, हमारी धरती है, हमारी ज़मीन है, हम आज़ाद कौम है। सफारत खाना उनका है, लेकिन ये सड़कें इस्लामाबाद तो हमारा है। बाकी आपका रहा ये सवाल कि क्या आपने इंतज़ामिया के साथ बातचीत की थी। मैं कहना चाहता हूँ कि कल शायद आखिरी टेलीफोन रंधावा साहब जो कि इस्लामाबाद के अमीर हैं, उनसे मेरी बात यही हुई कि क्या इंतज़ामिया के साथ आपने सारी तफसीलात तय की हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने तय की है, और कल 12 बजे इंतज़ामिया और हमारा इंतज़ामिया जमात की क़ियादत मिलकर हम उस पॉइंट का मुआयना करेंगे। और आज वो मुआयना करने के लिए आ रहे थे कि अचानक इनके सोच बदल गई और उन्होंने लाउड स्पीकर उठाना शुरू किया, उनकी गिरफ्तारी शुरू की। हम अपने लोगों के रहाई का मुतालिबा नहीं करते, हम यही कहते हैं कि कल मार्च होगा और हर हालत में होगा। जमात इस्लामी की कोई और काफ़ी सर इसके अलावा मार्च और एहतजाज के अलावा गजा के हवाले से आपने क्या कहते हैं? आज के लिए इतना ही काफी, बाकी बातें कल करेंगे। कितने कारकुनान गिरफ्तार हैं आपके? हमारे 2 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया।